And as we all know, right now we are in the series of emotional interdependence session and series, and the question answer round is supposed to be done today. So you all know Sangeeta Didi, I am Swastika Chakravarti Sachdeva. So I'm the HR head for lifestyle, and today somehow Pushpanjali could not come. So I'm starting this session because uh, I don't know what has happened today in Gurgaon, but many people are stuck in heavy traffic. So hopefully they are all joining from mobile or from their respective location. Uh, Thank you for joining us. Over to you, Didi. Shanti. So welcome all of you once again, also Swastika Ben. So we are meeting for the first time, I think so. Being ahead Ma'am, also. Didi, I have joined the session many times, but yes, we are speaking for the very first time. Oh. So thanks once again, and all the angels, whoever the angels will, as usual, yeah, दर्शन देंगे और अपनी दृष्टि भी देंगे हमको. जो एंजल्स है सब ऑन करेंगे अपने वीडियोस. ओके, so we have been learning very nicely, I suppose, regarding the emotional independence. So all of you have practiced. सभी ने किया है प्रैक्टिस, थोड़ा बहुत भी किया है. एटलीस्ट हमने एग्री तो किया कि we were dependent, we were not enjoying freedom, the complete freedom of India which was given to us long back. So we were still not enjoying the freedom. इतना तो पता चला ना हम सबको. Yes or no, सब पता चला. आज हम बहुत अच्छा एक क्वेश्चनर भी समझेंगे. अरे वो तो गया. तो ये समझना कि आई वॉज सबसे पहले लर्निंग जो थी हमारी अभी तक कि आई एम चूजिंग द इमोशन, वट एवर इमोशन आई एम गोइंग थ्रू, बट वी आर वेरी क्लियर that I am choosing the emotion. So this has been agreed by all of you, right? And therefore, this was the homework. Whatever be others' behavior, I will choose my response. Right? सबको याद है वो homework? I will stick to my value. Yeah, last time we discussed about how the values, I mean, what we have to do. So we had given the example of a bottle. So whatever will come out will be the thing which is inside the bottle. So whatever is my value, I will stick to my value. So many of you had even messaged, and even if not, but we all know our value, ourselves very nicely. Many times even we say to others, मेरा क्या है, इसने इतना किया लेकिन मेरा नेचर है ना बहुत हेल्पिंग करने का. I don't know why I still help him. That is called your value. कि जिसमें नंबर्स क्वांटिटी नहीं है एंड टाइम नहीं है. इतना टाइम मैंने कर दिया अब नहीं होगा, या इतने लोगों को मैंने हेल्प कर दिया अब नहीं होगा. दिस इज कॉल्ड स्टिकिंग टू द वैल्यूज. सो सिमिलरली इट कुड बी पेशेंस. इतना मैं पेशेंट रह गया अब नहीं होगा. सो कम व्हाट मे. एवरीवन हैड यूज्ड दिस फॉर्मूला? यस और नो? नहीं यूज किया, एटलीस्ट रियलाइज किया. ओके, so we'll just go through all the whole month which we had discussed. One was choosing, therefore whatever others behavior, I have to choose my response. And this choosing is called independence. जैसे जहां भी आप खुद चूज कर सकते हो, कोई कपड़ा, कोई ड्रेस, कोई घर, if it is as per your choice, that is called freedom. So if I can choose my response to the situation, if I want to be angry, then I'll be.
If I want to get hurt, then I'll choose the hurt emotion. This choice we have to exercise. So that is called independence, right? ये था. And secondly, therefore, for that, what is very much essential to have that independence? तो methods क्या होंगे? Art of choosing the response. The method is emotional. First is detachment. जब तक हम detach नहीं होंगे, because the more I'm emotionally attached to anyone around me, to any ideas, to any projects, to whatever activity I'm doing, I will get that influence. जिससे भी हम attach होंगे ना, so it's like you are hurt, I'll be hurt. The child is hurt because he is hit in the school. तो मुझे भी बहुत, जैसे मैंने सुना मुझे भी उतना गुस्सा आ गया. क्यों? बिकॉज मैं चाइल्ड से बहुत अटैच्ड, इसलिए जैसा उसका इमोशन था वैसे मुझे वो. तो इसलिए आप देखो, जैसे इट्स लाइक आई डोंट हैव टू थिंक, आई एम जस्ट अ कॉपी ऑफ अदर्स. उसने क्रोध किया, वो बहुत नाराज है, मैं भी डिप्रेशन में चली गई. एंड देन वी से एज अ फैमिली हमको तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे कैसे हो सकता है? अब इट्स लाइक हमने कई बार डिस्कस भी किया कि एक पिट है, उसमें एक जन गिरता है और दूसरा कहता है, बाकी तीन ऑल ऑन द रोड गोइंग, एंड द वन चाइल्ड अननोटिस्ड he falls in the pit. Others on the road, just little behind the child, what would they say? अरे I am so much attached to my child, मैं भी गिर जाऊं पिट में. Other three family members also will fall just because one has fallen down. तो एक्चुअली क्या चाहिए उसमें? अच्छा, दो गिर भी गए, अगर एक जन भी वो पिट के बाहर है तो क्या कर देगा? वो बाकियों को उठा लेगा, बाकियों को निकाल देगा. सो देयरफॉर बाकी सब गुस्से में है, पूरा ऑफिस का सेटअप, क्योंकि बॉस ने डांट दिया तो सब लोग गुस्से में है. अगर एक भी बिना गुस्से का है तो क्या हो जाएगा? एक भी पेशेंस है, वो बाकियों को निकाल देगा. सो हाउ मेनी आर नीडेड? जस्ट वन. So this is called emotionally I am detached. So I am not following what others are going through. Others are very frustrated. Others, सब एक ग्रुप में बैठे हैं हम लोग सब, and सब सरकार की बुराइयां कर रहे हैं, and because all of them are facing what all the policies है, ये सब है, तो वो बहुत सरकार की बुराइयां करते हैं. मैं किसी की, हर कोई की बुराई कर रहे हैं. अब उस समय if I and only I can just not be the part of that frustration, cannot not part of that negative conversation, can I be there? क्या हो जाएगा? तो it will be, so at least I am not absorbing that emotion. I am not contributing to the jealousy, to the competition going on in the atmosphere, and I will be able to influence others कि नहीं, ये कोई solution नहीं है, उसकी बुराई करना, उसके बुराई करना. This is not the solution. तो ये है emotional independence. हो सकता है ऐसा? पॉसिबल है. तो अब इट्स लाइक जैसे सर्जरी, वो होते हैं ना ट्विंस, वो दोनों अटैच्ड होते हैं, उनकी मतलब वो बॉडी जुड़े हुए होते हैं. हाउ मेनी हैव सीन दैट डुप्लेट्स? उनकी बॉडी जुड़ी हुई होती है. और तो क्या होता है, एक उठता है दूसरे को भी उठना पड़ता है, एक बैठता है दूसरे को भी बैठना पड़ता है, एंड देयरफॉर उनकी सर्जरी होती है, जरूरी हो जाती है. सर्जरी का मतलब है इंडिपेंडेंट. वो कुछ भी करे, ये कुछ भी करे, बोथ आर इंडिपेंडेंट, बोथ आर फ्री टू डू वॉट एवर दे विश. दिस इज देयरफॉर इमोशनल सर्जरी किसको करानी है? करानी है कि नहीं करानी है? कि नहीं, मैं ना
वो बच्चा नाराज, मैं भी नाराज। बच्चे ने अच्छे मार्क्स नहीं लिए, वो वैसे ही दुखी है क्योंकि सब लोगों का अच्छा मार्क्स है, मुझे नहीं आया, मेरी मम्मी पापा भी नाराज। बॉस ने ऐसा गुस्सा कर दिया, मुझे भी बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गई, क्या है, क्या जॉब करना है, फायदा क्या। तो ये इमोशनल सर्जरी करनी है कि चलता रहे अटैच, ये चलता रहे, किसको करनी है? अभी अभी क्वेश्चनर आएगा आपके सामने। भाई हाथ आप दिखाएंगे, मुंह दिखाएंगे तो पता चलेगा ना हाथ ऊपर है या नीचे। जिंदल कितने जिंदा दिली है, जिंदल मतलब जिंदा दिली। तो जब चेहरा देखेंगे तो पता चलेगा जिंदा दिली कितने। यस, चलो एक एक जिंदा दिल निकला, ऐसे और भी निकलते जाएंगे। बहुत अच्छा। समझदार को इशारा काफी है ना? तो सभी समझदार बैठे। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू कि हाउ टू बी वेरी इमोशनली डिटैच्ड। और उसके लिए चाहिए इमोशनल डाइट, बहुत अच्छा चाहिए। इमोशनल सर्जरी के लिए पहले क्या करते हैं? पहले पूरा पैरामीटर्स चेक करते हैं। तो इमोशनल डाइट, क्योंकि इमोशनल डाइट नहीं होगा तो इमोशनल सर्जरी हो नहीं सकती, इमोशनल डिटैच्ड हम हो नहीं सकते। और इमोशनल डाइट क्या है? लोग बहुत बार कहते हैं हमको ना मेडिटेशन सीखना है, बिकॉज लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, बहुत अनहैप्पीनेस है, बहुत मतलब चैलेंजेस है, तो मेरे को मेडिटेशन करना। अच्छा, मेडिटेशन करने के लिए आते इवन आप लोग भी, व्हेन यू ऑल मस्ट बी डूइंग द एट द एंड, तो मन ही नहीं लगता, मन बहुत भटकता है। इट्स लाइक आपको वॉक करना, तो आपने बहुत सुना वॉकिंग का, एंड यू हैव डिसाइडेड दैट आई शुड वॉक डेली, एंड यू स्टार्टेड, बट आपने खाना ही नहीं खाते, खाना खाते नहीं हो, एंड वॉकिंग बहुत अच्छी है, दैट यू वांट टू डू, will it be possible? Will it be possible? You won't be able to walk. थोड़ा सा वॉक किया एकदम थक जाओगे, बिकॉज क्योंकि खाना तो खाया नहीं। इसी तरह तो इसलिए पहले खाना खाना होता है एंड देन वॉकिंग। So similarly, emotional diet. So every day, if I just listen half an hour to such kind of spiritual sessions, or next choice है, नेक्स्ट ऑप्शन है कि जहां भी आप रहते हो वहां देयर इज अ सेंटर। इफ यू कैन गो देयर एंड लर्न द स्पिरिचुअल नॉलेज एवरी डे, जस्ट 30 minutes of investment on the food of the soul, emotional diet, and thereafter walking, and then meditation. This combination, so for 10 minutes meditation, 30 minutes spiritual diet, and then you see the emotional health of myself. तो अगर खाली वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, खाना नहीं खाओ, नॉट पॉसिबल। तो खाना भी जरूरी है एंड वॉकिंग भी जरूरी है। सो दिस टाइप ऑफ नॉलेज, और कुछ नहीं, जो हमारे सेशंस हो चुके हैं, if you will just go through every day morning में 30 minutes, I have to listen the only positive and powerful sessions, just 30 minutes. I won't have any other thing that time. So making this a lifestyle. You all are lifestyle people, no? तो add this also as a lifestyle. तो जब आप इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इमोशनल डाइट, सो व्हेन इमोशनल डाइट, इमोशनल डिटैचमेंट एंड इमोशनल डाइट, ये दोनों हो जाएगा तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर टू बिकम इमोशनली इंडिपेंडेंट. दैट इज द क्लू फॉर इमोशनल इंडिपेंडेंस. ठीक है, इजी है. So therefore, I will choose my emotion. How many of them are ready? तो अभी अब बहुत अच्छा एक्सरसाइज करेंगे. And the whole JSL Jindals should join now for this question. जो भी आपकी कलीग्स आजू बाजू है सबको बोलो आ जाओ. हाँ, वेरी गुड. सर तो सभी के चेहरे भी पता चलेगा कितना सब रेडी है. ओके. So starting with this questionnaire, and then we'll take the question answer session. The first question, सभी आंसर करते जाएंगे. Stuck in a traffic jam, getting irritated. First option.
is normal. I can be peaceful. आप जवाब देते जाओ अपना, फटाफट जवाब देते जाओ. Stuck in B. सिर्फ 1 minute for everything. अच्छा, A. B. ओके. अच्छा, A और B करो, पता चला. नॉर्मल. ओके. So now the brother of this question, stuck in a traffic jam, and there is a flight, there is a very important meeting, now getting irritated, is normal, can be peaceful. पूरी चांसेस है, विस्तारा है, इंडिगो है, बिल्कुल सुनने वाली नहीं है, फ्लाइट मिस हो जाएगी. Is normal, peaceful, can be peaceful. I want maximum 100 answers. I want. ये 20-30 chats नहीं चलेंगे. Okay. B. A और B. डिफिकल्ट और इजी नहीं पूछा है, ए या बी. ओके, गुड. बी. अच्छा, ए बी है कुछ. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. There is an anniversary day. You wear a very good dress. You wore a very good dress, but the spouse just doesn't remember. So getting hurt is obvious, can be understanding. चलो कोई बात नहीं, भूल गए. आप आए शाम को, आप सुबह इतना फर्स्ट क्लास डिनर, ब्रेकफास्ट भी रेडी किया, फर्स्ट क्लास ड्रेस भी पहना, और इतने खुश भी थे, और उसको तो याद ही नहीं. और अब फर्स्ट रिस्पॉन्स, आज 3 जून है, आपको याद नहीं? नहीं, 30th में नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं. 30th में आपको नहीं याद है? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है. So now getting hurt is obvious, can be understanding. I can understand, कोई बात नहीं, बिजी होते हैं तो नहीं याद रहता है, और ठीक है. और पूरा दिन भी बीत गया, आप तो सोचे कि चलो अभी मैं बिल्कुल आज मैं बोलूंगी नहीं, इस बार तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी. आपने लंच भी बहुत अच्छा तैयार किया, पूरे दिन आपने अच्छे मैसेजेस भी भेजे, बट नॉट टू दैट डायरेक्टली, और शाम तक आप भेजते रहे, नो रिस्पॉन्स, फोन भी नहीं आया. क्या कहेंगे? बी. अच्छा, ए बी. ओके, कैन बी अंडरस्टैंडिंग. बहुत अच्छा, रिलीफ है. सभी स्पाउसेस के लिए बहुत रिलीफ है. देखो JSL और जिंदल क्या करेगा. अच्छा, ए, वेरी गुड. मेजॉरिटी बी. ओके. थर्ड क्वेश्चन. So let's check. Explain nicely to the colleague, your colleague in the office, but is still doing the same mistake again. कितनी बार समझाया, फिर भी वैसा का वैसा करता है. Getting angry is natural. I can be happy, peaceful. A. अच्छा, ए बहुत आ रहा है. अच्छा, साथी के साथ भी नहीं आ रहा है, कम आ रहा है. ए. अच्छा. ओके. प्रैक्टिस क्या करेंगे? ए ही रखेंगे. अभी तक ए था, अभी भी ए रहेगा इसके बाद. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें थोड़े फेल है सभी. Given work by the seniors, need to do it, and at the same time other work delegated to the juniors, they have not done up to the mark. Now इधर ऊपर दिया, वो मेरे ऊपर मेरा जान खा रहा है, और ये नीचे वाले मेरा सुन नहीं रहे.
मैं बीच में. Is obvious getting angry can be stable. इमोशनल इंडिपेंडेंस 1 महीना तक चल रहा है, अभी बताओ क्या करेंगे. बी. बी. ओके, मेजॉरिटी बी. अच्छा, सभी ने आंसर दे दिया. वंडरफुल. ठीक है. Someone at home, next question, not well, and office work is also very important. Now, getting disturbed is natural. I can be stable. घर में बीमार है और यहाँ भी इतना important work है, यहाँ अलाउ ही नहीं कर रहे छुट्टी दे, वो देना ही नहीं चाहते हैं, वो समझना ही नहीं चाहते आपकी प्रॉब्लम. आप क्या करेंगे? काम तो जो भी करना है आपको, चाहे छुट्टी जबरदस्ती लेनी भी पड़े, बट ऐसे समय में नेचुरल स्टेबल रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे. वंडरफुल. ए. बी. बी. ए. 4 महीने का इंडिपेंडेंस के बाद क्या आंसर चाहिए हमको? 1 महीने के सेशन के बाद. बी. ए. अच्छा, so these are, so you did work. Last question लेते. You did work very sincerely. Your colleague is praised more. Both of you did, but you did actually more part of that project, the job. Getting jealous or hurt is natural. I can be peaceful. चलो, मेजॉरिटी भी है. ओके, सभी त्यागी है, समझदार है. ओके, so this is what we have to do in life. So ऐसे कितने सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं. every little day, every little time, after every little time we have a situation, and if the A is the answer for all, natural है ना, obvious है ना, so by the time we reach home we'll just carry the matka of stress, of hurt, of irritation, and that is what you bring, the earning, that quality of earning you bring to the children. उनको पैसे के साथ साथ स्ट्रेस भी देते जा रहे हैं, क्योंकि सारा ने ये अर्न किया था. तो इमोशनली सभी ने अपना चेक किया. इंडिपेंडेंस, कुछ भी हो जाए, आई विल चूज माई इमोशन. रेडी? ओके, सो नाउ विल डू द क्वेश्चंस. क्वेश्चंस? सभी को, जिन जिन का ए है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिन्होंने भी ए ऑप्शन दिया. यस, सोनल. यस, शांति दीदी, मैं जो जानना चाहती हूँ वो ये कि यदि आप पीसफुल रहते हैं और काम भी पीसफुल ढंग से लेते हैं, तो आपका परसेप्शन एक वीक बॉस की तरह भी क्रिएट होता है. और कई बार ये फीडबैक भी दिया जाता है कि आप अपनी टीम के साथ लीनियंसी जताते हैं, वेराज आप लीनियंसी नहीं जता रहे, आप काम ही मांग रहे हैं, बस आप चिल्ला चिल्ली नहीं कर रहे. सो उस परसेप्शन के साथ कैसे डील किया जाए? परसेप्शन, हमने सोचा है कि लोग ऐसे बोलते हैं, या मे बी जनरली लोग ऐसे कहते हैं, बट इफ आई नो आई एम लीनियंट, और मतलब आई एम पीसफुली डीलिंग विद इट, एंड आई एम वेरी confirmed, I am very मेरा conviction है उसमें कि I will be peaceful, and at the same time you are very powerful also inside कि नहीं, the supreme energy, the source of goodness, I am good, I am peaceful,
ही इज विथ मी, मेरा भाग्य कहीं नहीं जाएगा, I will get it, but I won't go out of this my philosophy. I won't go out of my principles. If you have the strong conviction and be, you are not bothered of what people think about it. And certainly, since you are not bothered, हम लोग क्या करते, आउटवर्डली में भी लीनियंट हो जाए, अंदर हम डर रहते, अरे ये तो इसको तो मिल जाएगा, मुझे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी तो नेचर है ही नहीं मांगने की। तो अंदर ही अंदर हम इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं, और हम पीसफुल हमारा नेचर है, हम वैसे मांग भी नहीं सकते। तो दिस डुअलिटी वोंट गिव दैट रिजल्ट। अंदर का भी फुल कन्विक्शन हो, कुछ भी हो जाए, आई एम दिस मीन्स आई एम दिस, एंड आई नो आई विल बी सक्सेसफुल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। So I have to have that conviction of my success also, of what I'm doing, because I'm doing very accurately, I'm doing very rightly. And a very powerful, as I told, if you can have this, कि supreme energy मेरे साथ है, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। एक थोड़ा सा पीरियड होगा, उसमें हो सकता है आप दूसरे को चांस ज्यादा मिले, लेकिन बाद में आप ही को, आपको फाइनली आप ही को होगा और प्रिफर किया जाए। बट अंदर की कन्विक्शन डाउन नहीं रहे, एंड वॉट एवर आई एम डूइंग इज नॉट बिकॉज टू प्लीज एनीबडी, बट दिस इज द वे लाइफ शुड बी। आई डोंट वॉन्ट टू छीना झपटी करके, PhD पुल हिम डाउन करके फिर मैं कुछ करूं। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। सो वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट। आई एम रेडी to have less, but I'll do this. I should go to that extent. Not कि एक बार किया नहीं मिला तो चलो छोड़ो अपने ऑनेस्टी को, करो लोग जैसे करते वैसे। Not that. Let me stick to that value always, and with that supreme conviction and the supreme energy, आपको 100% मिलेगा। कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। और फाइनली द सीनियर्स ऑल्सो विल रिलाई ऑन यू। आप ट्राई करके देखें कि पता है कि इसका ना कितना भी करो ये डाउन नहीं जाती। 2 मेड्स है आपके पास, एक है तुरंत ऐसे ऐसे करने वाली, और एक है आप कुछ भी बोल दो, वो नहीं भी उसकी गलती रहेगी तो भी वो चुप रहती है। आपको विश्वास किस पे ज्यादा आता है? आप कीज, घर की कीज भी किसको देना प्रिफर करोगे? तो समवेयर यू आर विनिंग द हार्ट unknowingly, which we don't know, which is very secret, but that is going on. Thank you. Very good question. Yeah. और भी जो A लिखा ना, उनका क्वेश्चंस। Any other? और कुछ क्वेश्चन नहीं है किसी का? पुष्पांजलि बेन, क्वेश्चंस? या स्वस्तिका बेन, yes. Didi, like you mentioned in the question, that we all are hired for the tasks and our strengths in the company, and in the question it was that you are repetitively preaching, telling, guiding the person, your subordinate or colleague, and then also the person is doing the things wrongly, and truly it is normal to be get annoyed because you have put several efforts to make it okay. Still the person is not doing it correctly because of not insufficient knowledge, rather because of complacency, Carelessness. so carelessness, that okay जिस बार बोला उस बार ठीक हो गया, maybe the same task is required next month again, and next month again that carelessness, overlook कर गए, first time right नहीं हुआ. So it is very normal to get annoyed and scold, and if you don't get annoyed and try to handle the situation coolly, the person
will have a tendency to be more complacent, that okay, my boss never shouts on me, never scolds me, so it is better, whatever is happening, it's a normal, galti to hoti rehti hai, it is, so the person may have a tendency to not take it very seriously. So in this situation, sometimes scolding and showing anger is required to make that person understand that this is serious matter, and accuracy is important, timeliness is important. But if we show calmness, they can taken, means taken this job Taken for granted. yes. So how should we act on this kind of situation? Very good question. See, when we say about not being angry, but being authoritative, आपने एक बार कहा, 2 बार कहा, फिर भी वो वैसे कर रहा है, and now showing कि देखो, this is this and this is what you have done. आपने authoritatively बोलना है, बोलेंगे, not angrily. So it's like हम ये सोचते हैं कि शांति का मतलब है I'll be very like coolly, calmly. Internally it is coolness, internally calm. But if speech wise not angry, जिसमें हम out of control होते, angry means what? The words angry and authoritative. In anger, the words become out of your control, and then you bring all the past matters also into account. कितनी बार कह दिया, तुम वैसे ही हो, तुम कभी सुधरने वाली नहीं हो, तुमको तो बोल बोल के मैं थक गई. No, all this kind of excessive words are called anger. और आपने कहा, देखो मैंने लास्ट टाइम भी कहा, सेकेंड टाइम कह रही हूं, एंड दिस इज द थर्ड टाइम. सी अगेन यू हैव डन दिस मिस्टेक. प्लीज बी स्ट्रॉन्ग, प्लीज बी केयरफुल, डू इट. तो बीइंग ऑथोरिटेटिव एंड स्पीकिंग लेस वर्ड्स एंड टू द पॉइंट. और अगर हम ऐसे करते जाए एज इट इज, अगर मिस्टेक करते भी है, एक को मिस्टेक किया डाटा, उसको मिस्टेक किया डाटा, उसने काम ठीक किया, सो इट्स फाइन, योर वर्क इज गेटिंग डन. बट व्हाट आर यू गेनिंग इनसाइड? यू आर डेवलपिंग द संस्कार ऑफ एंगर. एक जगह फायदा हो रहा है, दूसरा जगह नुकसान होता जा रहा है. हम में से कितने हैं कि मेरी वर्क का प्लेस ही ऐसा था कि मेरे को इतना गुस्सा करना पड़ा, अब मुझे बिना बात के भी गुस्सा आ जाता. ऐसा हमने देखा. क्यों? क्योंकि ये छोटी बातें थी ना, इधर गुस्सा किया काम हुआ, इधर गुस्सा किया काम हुआ, इधर गुस्सा किया, और ऐसे करके मेरा अभी संस्कार बना. सो एम आई रेडी फॉर द लार्जर लॉस टू एकोमोडेट द स्मॉलर प्रॉफिट्स? अब मेरा गुस्से का संस्कार हो गया, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी हो गई, इसके कारण मेरे शरीर पर असर है, मुझे फैमिली में ऑलवेज गुस्सा आता है. सो आर वी रेडी फॉर द लार्जर लॉस? एंड इफ आई कैन बी जस्ट ओके, पीसफुल, शांत, inside peaceful, but worldly authoritative. I've told you 1 time, 2 times, and I'll be counting 3 times. See, this is mistake, you do it. 4th time also, it is I give up my patience. Actually, the person can work and can improve, but I give up my patience. और कभी कभी तो थोड़े समय के बाद आप करते जाओगे ना, उसको असर भी नहीं पड़ेगा, खाली आपको और आपके शरीर को असर पड़ता जाएगा, और आपके फैमिली को असर पड़ेगा, उसको तो असर भी नहीं पड़ेगा. मीन्स देयर आर सो मेनी अदर डिसएडवांटेज ऑफ इट. तो बोलना भी है, लेकिन ऑथोरिटेटिवली एंड मेकिंग देम अंडरस्टैंड, and then internally having good wishes. Many times इधर हम बहुत डिस्टर्ब, we are not talking about just उस समय शांति में रहे, इधर मैं बोली इसको कुछ समझ में नहीं आता है, ये तो ना कभी सुधरने वाला नहीं है, ये तो मेरा ही प्रोजेक्ट को पूरा लॉस में करेगा, मेरा इंप्रेशन, ये सब मैंने बोल दिया इधर, तब तो फिर गुस्सा करना नेचुरल है.
Here is where we take care कि I will give good wishes to the soul. The soul is not able to understand. आप बहुत समझदार हो, आप शांत हो, I'll give that good wishes and then I'll be able to. So this is how we tackle. तब आप always cool रह सकते हो. And there are how many things which doesn't go your way. ऐसे कितना हो सकता है पूरे दिन में? आज ट्रैफिक जैम था, राइट? इतने सारे सबके बाकी लाइनअप्स सब डिस्टर्ब हो गए. कितने बार कर्ज किया होगा रेड लाइट को, सरकार को? नहीं कर्ज किया? वेरी गुड, इमोशनली इंडिपेंडेंट. वंडरफुल. और फिर ये काम रहेगा मेरा, ये काम रहेगा, या क्या है, अब मुझे ये करना पड़ेगा, दैट स्ट्रेस. तो जितना इरिटेटेड होते जाएंगे उतना द होल फैमिली विल फॉलो. फिर एंगर भी आएगा, फ्रस्ट्रेशन भी आएगा, हेट्रेड भी होगा. Are we ready to accommodate all these emotions always in my heart? Are we comfortable? No? So therefore, this is what is required. We just have to be here also, internally also peaceful, good wishes, and then whatever you want to speak, speak. हम 4 बार बोलते, 5-6 बार तो सुधरता ही है वो. ऐसा हम ट्राई करके देखें. दिस इज समथिंग टू बी एक्सपेरिमेंट. यस सोनल वन. पर बस मुझे एक बात याद आई कि जब शुरुआती दिनों में मेरे करियर के शायद पहले साल में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, और क्योंकि कम्युनिकेशन का मेरा काम है, वो जो गलती हुई थी वो छप के बहुत बड़े स्टेक होल्डर ऑडियंस के सामने चला गया था, सर्कुलेट हो गया था. और वो गलती मेरे केयरलेसनेस की वजह से, रादर मैं लिखते समय कुछ पार्ट मैंने केयरलेसली लिख दिया, एंड इट इज सो ब्लंडरस कि मैं मेंशन भी नहीं कर सकती. और मेरे सुपरवाइजर ने एक शब्द नहीं कहा था मुझे, नॉट अ वर्ड. वो नोटिस हुआ, उसके बाद वो इमीडिएटली पुल डाउन करके मैंने बाकी करेक्टिव एक्शंस लिए, एंड आई वाज वेरी अपोलोजेटिक. और उसके बाद आज तक मुझसे वो गलती नहीं हुई. और क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं कहा, वो चेतना मुझ में आज तक जीवित है कि मैंने कितना गलत किया और मुझे नहीं करना चाहिए था. मेरी वजह से वो सॉरी लाइट. दिस इज द एग्जांपल. आप गुस्सा नहीं करोगे ना, आप अपने कलीग्स का दिल, सबऑर्डिनेट्स के दिल बहुत जीतोगे और रिस्पेक्ट बहुत कमाओगे हमेशा को. हम बहुत बार अंदर से डिसरिस्पेक्ट अर्न करते हैं बार बार गुस्सा करके. और वो जो सबऑर्डिनेट मेरे साथ काम करते हैं उसको कभी घर की फीलिंग नहीं आएगी. जिस ऑफिस में सारा समय गुस्सा होता है, अगर अपनापन देना है, द होल लॉट ऑफ इंसल्ट, इमोशन, एक एंगर निकल जाएगा, द होल लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इंसल्ट, कितने सारे एलिमेंट्स में निकलते जाएंगे. और लोगों को लगेगा जैसे घर में है वैसे हम ऑफिस में है. ऑफिस में भी घर की फीलिंग हो, अपनेपन की फीलिंग हो. That's right. Okay. So, I think so time is up. And next Tuesday we'll be having Girish Bhai with us for the session. E.V. Girish will be coming for the session. Topic is very interesting. Should I disclose it? हाँ दीदी please. Just commitment. And how to be committed. A very deep topic which will be learning. सबसे ज्यादा जरूरत है ना. Okay. Okay, so this time the whole month we discussed a pura independent room. Every time just have in mind, I'll choose the emotion. Whatever I want to do, I'll choose. And if at all I'll do, I normal kehke, I will take the responsibility. मैंने choose किया. करो गुस्सा. उसने नहीं दिलाया, मैंने किया. Okay, ready? So in this we'll just have 2 minutes, 1 minute silence and take the oath.
I am a pure energy. I am a powerful energy, completely independent. I can experience the rays of the Supreme Energy on me, showering on me. Rays of peace, love, happiness. In all the activities, I see myself as if the rays are showering on me and the Supreme Energy always with me. So, Thank you so much, Didi. Swastika ma'am, I would request you to please give the closure. Sure, this is a wonderful session, Didi. And really, with this particular situational analysis, that how should we work, and situation-based discussion was really very, very meaningful. And I'm sure that not everyone spoken in this particular session, but everyone is got some advantage and impact from these things, because this is daily life and nothing out of the box we are speaking, which is happening in our daily routine. You are teaching us how to handle those situations only. So this is really great, and these sessions are really impactful, and looking forward to the commitment session as well. Thank you for joining with us.